General Secretary, National Secretary of BJP, and also we have in our midst today the Mahila State President, Jyoti Surong. Our Honorable Prime Minister, he has loved so much for the state of Meghalaya, and he don't want any kind of, also he don't believe any kind of discriminations in politics. He has only one word and one agenda is development. His development, his thought process about the development is to serve the poor and the needy. We had seen several times our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has visited Meghalaya because he loves so much the states of Meghalaya. He wanted to develop and also to serve the needy and the poor people. And also we have seen today the BJP in the state of Meghalaya had set up 60 seats to contest in all the assembly seats in the state of Meghalaya. This is first time in the history of this Meghalaya. Because why? We have seen the acceptability of the BJP in Meghalaya is very high because of two factors. One factor is the development. Another factor is the household's name of our Kubleshibon if he baro, Mutakasi Rinkat, Bani Idarunchuk, National General Secretary, Napo BJP, Badru Mr. A.L. Heck, National Executive Member, and Ruk is Senior MLA, Jonka BJP. Muntakasni, Apreng Jungi Muntakasni, in I address, Tarunchuk ji, Yaka press conference. कल मेघालय के अंदर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के मैं सोच रहा था कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुद्दे उठाए हैं कितने हास्यास्पद और बेसलेस है। जिन्होंने 50 साल मेघालय के अंदर राज किया, आधी शताब्दी जो लोग यहां सत्ता में बैठे, ना मेघालय का विकास हुआ ना नॉर्थ ईस्ट का विकास हुआ। और आज कांग्रेस पूरे देश के अंदर और मेघालय में नन एंड वाइल हो चुकी है। ना कांग्रेस के पास नीति है ना नेता है, वो जानबूझकर झूठे आरोप लगा रही है। आज मेघालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों को सामने रखकर चुनाव लड़ रही है। हमारे 60 के 60 प्रत्याशी काफी मेहनत कर रहे हैं और लोगों का रुझान हमारी तरफ काफी तेजी से बढ़ा है। लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं। लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के Meghalaya. Because why? We have seen the acceptability of the BJP in Meghalaya is very high because of two factors. One factor is the development. Another factor is the household's name of our beloved Prime Minister. If you talk about the household's name, you go to any residence or any household. 90 years old men or women, they talk about the name of our Prime Minister, Shri Modi ji. If you talk about the 5 years old child, he also talk about Modi ji. If you talk about the Yuva today, our youth in the state of Meghalaya, they always talk about the development which is brought by our Honorable Prime Minister. So our Prime Minister, which I want to reiterate it again, he does not believe in discrimination politics. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. ये है the agenda of the BJP and also the thought process of our Honorable Prime Minister. हीरा के तहत यहां पर नई योजना बनाई जिसके तहत हाईवे, रेलवे और एयरवे तीनों की कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाया है। आईटी के माध्यम से यहां की नौजवानों को जहां रोजगार मिले और वहीं यहां विकास आगे बढ़ सके। उड़ान स्कीम के तहत 16 नए रूट्स नॉर्थ ईस्ट में चालू किए गए हैं। किसानों को जोड़ा गया है। किसान सम्मान निधि के द्वारा लाभ पहुंचाया जा रहा है। मेघालय के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर पिछले 9 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपया हमारी केंद्र की सरकार ने दिया है, जो पिछले 7 दशकों में जितना रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर
तथाकथित कांग्रेस और उनके बी सी डी टीमों ने खर्च किया होगा, उनकी सरकारों ने किया होगा, उतना केवल 9 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपया हमने खर्च किया। लगभग 150 एकलव्य विद्यालय, जिसमें से 39 विद्यालय मेघालय में खोले गए हैं। मेघालय के अंदर विकास को हर क्षेत्र में बढ़ाया जा रहा है, चाहे उड़ान स्कीम के तहत हो, चाहे रोडवे हमारी तरफ काफी तेजी से बढ़ा है। लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं। लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेघालय में डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से लगातार नॉर्थ ईस्ट को अपने विकास के एजेंडे में प्रथम रखा और स्पष्ट किया कि लुक ईस्ट ही भारत की तरक्की का द्वार है, नॉर्थ ईस्ट से ही भारत आगे बढ़ सकता है। इस फार्मूले को सामने रखकर उन्होंने यहां आधारभूत संरचना के विकास, आईटी औद्योगिक विकास, स्पोर्ट्स विकास के लिए निवेश किया। जैविक खेती के लिए यहां उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया और लुक ईस्ट के तहत घुसपैठ, ड्रग माफिया, बेरोजगारी, इसको दूर करने के लिए लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार प्रयास कर रही है। जहां कांग्रेस नन एंड वाइल हुई है, वहीं लोकल पार्टियां भ्रष्टाचार, वंशवाद, परिवारवाद के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। मेघालय आगे बढ़ना चाहता है, कांग्रेस व अन्य पार्टियां उसको पीछे धकेलना चाहती है। हमने हीरा के तहत यहां पर नई योजना बनाई, जिसके तहत हाईवे, रेलवे और एयरवे